This topic very important, very crispy. Linker and loader. In the last class, what we first of all covered is compiler and assembler. Now in today's class, this is an important topic: linker and loader. If we are talking about compiler and assembler, you all know compiler do compiling the code, means convert high level into low level language, machine language, and assembler also do the same thing. But the only difference is assembler is working on the assembly language. So now the topic is linker and loader. Now what are the linkers and what are the loaders? They are very important to learn about these two because these two are helping in execution of program. So what is a linker? Linker is a special program that combines object files generated by compiler or assembler. So compiler assembler, when it runs, it generated some files. Some means not one file, it generates two or three files. One is object files or some another files. So other piece of codes to originate. So what is the function of linker? To combine all the object files and to generate a executable file .exe. So I think Excuse me, everybody sir. under. I Excuse me, think sir. yes. सर बैकग्राउंड वॉइस सर थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहे हैं. So it is with you only. I think your network is not working. You please mute. सर मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ. हाँ cool. So linker is a special program that combines the object files generated by compiler or assembler and other piece of codes to originate an executable file. This is one thing. Now, how the linker works. So before moving forward, you have to understand this diagram. Compiler or assembler, what it do, it convert this source code into object code, means your high level code into your machine code. Then linker will do one what linker will combine this object code with other additional files that is generated by this compiler or assembler, and linker combine all the files together and form an executable file .exe. And then another special program is there, that is what we call loader. And the main functioning of loader is to load the executable file into the memory, means the load the executable file produced by the linker into the memory. So अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश करूं कि लिंकर क्या होता है और लोडर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा. कंपाइलर क्या करता है, जब कंपाइलर कोड को कंपाइल करते हो, आप किसी भी सी जैसे सी के प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करने के बाद वो 2-3 फाइलें बनाता है. वो सारी फाइलों को जैसे आपने सी का कोई प्रोग्राम लिखा, तो आप जब सी का प्रोग्राम लिखते हो तो ऊपर हेडर फाइल्स भी लेते हो, लाइब्रेरीज भी लेते हो, पैकेजेस भी कुछ यूज़ करते हो. तो लिंकर क्या करता है, उन सभी हेडर फाइल्स को सबको क्लब कर देता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है आपके लिए. वो एग्जीक्यूटेबल फाइल का क्या पर्पस होता है, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप किसी भी सिस्टम पे ले जा करके उसको पहले रन करोगे, रन करके वो आपके सिस्टम में वो फाइलें जनरेट होंगी और फिर वो वर्क करेंगे. मतलब जनरेट होंगी मीन्स लोड होंगी इन द मेमोरी, जहाँ पे भी आप सी ड्राइव डी ड्राइव जिसमें भी आप कोई प्रोग्राम लोड कर रहे हो, और फिर वो वर्क करना शुरू करता है. तो linker and loader are the two separate thing, but more or less they are same, means they connected with each other. तो linker क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल्स को क्लब करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, और लोडर क्या करता है, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी लोकेशन के अंदर, जब ये इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन के अंदर उनको एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर करता है. अब लिंकेज जो है वो दो तरीके का होता है जी, डायनेमिक लिंकिंग और स्टैटिक लिंकिंग. इसमें क्या फ़र्क है, देखिए. डायनेमिक जो स्टैटिक लिंकिंग है, स्टैटिक लिंकिंग जो है, एज अ नेम सजेस्ट, दिस लिंकिंग इज डन इन अ द सिस्टम वेयर द प्रोग्राम इज नॉट, यू डू नॉट वांट टू शेयर द प्रोग्राम. तो वहाँ पे स्टैटिक लिंकिंग होती है. तो स्टैटिक लिंकिंग बेसिकली क्या करता है, देखो यहाँ पे दिखाते हैं आपको. स्टैटिक लिंकिंग स्टैटिक लिंकिंग बेसिकली इट लिंक्स द स्टैटिक फाइल्स. स्टैटिक फाइल्स मीन्स जिसको आपको शेयरेबल नहीं करना, जिसको आपको शेयर नहीं करना दूसरे सिस्टम पे, तो उसको स्टैटिक लिंकिंग कहते हैं. एक होता है डायनेमिक लिंकिंग. डायनेमिक लिंकिंग क्या होता है, देखो 1980 से पहले जो सिस्टम थे ना, वो स्टैटिक लिंकिंग यूज़ होती थी, तो बिकॉज हमें शेयर नहीं करना होता था, क्योंकि हमारे पास शेयरेबल डिवाइसेज ही नहीं थी. वी डू नॉट हैव सेकेंडरी मेमोरीज कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी मेमोरी नहीं थी कि हम उसको फाइलों को ट्रांसफ़र कर सकें. तो वहाँ पे रन टाइम लिंकर्स की ज़रूरत नहीं थी.
वहाँ पे स्टैटिक लिंकर्स ही काम करते थे। लेकिन बाद में हमें 1980s के बाद, क्योंकि हम चाहते थे कि सिस्टम्स जो है आपस में शेयर करें फाइल्स को, तो हमें वहाँ पे डायनेमिक लिंकिंग की जरूरत पड़ी कि रन टाइम पर वो फाइलों को क्लब करे, मतलब रन भी हो रहा है साथ साथ उसको वो लिंक भी कर रहा है, मतलब उसके सारे ऑब्जेक्ट्स कोड्स को साथ साथ जो एडिशनल फाइल्स हैं उसको क्लब कर रहा है। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक एंड डायनेमिक लिंकिंग। अभी इसको आगे बढ़ते हैं। लिंकर्स combines many separate pieces of program, reorganized storage location, typically invoked invisible by compiler। जो कंपाइलर जो फाइलें जनरेट करता है जो कि इनविजिबल होती हैं, वो सबको लिंक करके वो क्लब कर देता है। ये लिंकर का काम है। तो 3 फंक्शंस ऑफ लिंकर। लिंकर के मेन 3 फंक्शंस कौन कौन से हैं? नंबर 1, कंबाइन ऑल पीसीज ऑफ प्रोग्राम, जो छोटे छोटे उसके पीसीज हैं प्रोग्राम को, उसको कंबाइन करना। फिगर आउट अ न्यू मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन सो डैट ऑल पीसीज फिट टुगेदर। उन सबको इस तरीके से क्लब करता है कि न्यू मेमोरी जो उसको जो मेमोरी एलोकेशन है वो हर पीस को दे देता है। और टच अप एड्रेसेस दैट प्रोग्राम कैन रन अंडर द न्यू मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और एक्चुअली क्या होता है, जब कंपाइलर कंपाइल करता है प्रोग्राम को, तो वो कुछ कुछ पार्ट्स को एड्रेस एलोकेट नहीं करता, कुछ कुछ पार्ट्स को एड्रेस एलोकेट नहीं करता, वो वहाँ पे 0 लिख देता है। तो लिंकर जब उनको सबको क्लब करता है तो उसको पता लग जाता है कि ये जो पार्ट जो है इसको एड्रेस एलोकेट नहीं हुआ है। तो लिंकर का ये काम है। वो कैसे पता लगता है? वो 0 देख करके। तो लिंकर क्या करता है, वो 0 जहाँ पे होता है उसको समझ में आता है कि इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो वो वहाँ पे उनको मेमोरी भी एलोकेट करता है, मीन्स न्यू उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखता है। तो 3 फंक्शन है लिंकर के। नंबर 1, ऑल द पीसेस को क्लब करना। दूसरा, फिगर आउट करना मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरा, टचअप करना एड्रेसेस को, जो प्रोग्राम में कुछ पीसेस के नहीं है उनको टचअप देना। तो ये 3 काम है। इन तीनों के बाद वो क्या कर देता है, रनेबल प्रोग्राम बना देता है, जिसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम भी कहते हैं, हम .exe कहते हैं। तो ये लिंकर का काम है। नाउ प्रॉब्लम्स लिंकर मस्ट सॉल्व। कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसको लिंकर सॉल्व करता है? असेंबलर डज नॉट नो द एड्रेस। मैंने बताया ना, असेंबलर और कंपाइलर समटाइम्स इट डज नॉट नो द एड्रेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। तो वो क्या करता है, असेंबलर जस्ट पुट 0। वहाँ पे असेंबलर जो है 0 पुट कर देता है उस ऑब्जेक्ट फाइल में कि उसका एड्रेस उसको नहीं पता। और असेंबलर डज नॉट नो द थिंग्स इट्स असेंबलिंग वाइल गो इन द मेमोरी। तो उसको नहीं पता होता कि, तो वो वहाँ पे 0 इंसर्ट कर देता है। तो अज्यूम दैट द थिंग्स एट द एड्रेस 0 लेट लिंकर रीअरेंज। तो लिंकर रीअरेंज करता है। लिंकर कैसे काम करता है? वो 3 फेजेस में काम करता है जी। पहला फेज क्या है, वो पास करता है, रीड करता है सारे सेक्शन को, साइज को कंप्यूट करता है, सबकी मेमोरी लेआउट सब कुछ वो करता है। सेकंड, रीड इन द सिंबल, सब देखता है, सिंबल टेबल वेबल सब देखता है, वो सब चेक करता है। और फिर 3, रीड इन द सेक्शन एंड रीलोकेशन इन्फॉर्मेशन अपडेट एड्रेसेस राइट आउट। वही मैंने बताया ना, एड्रेसेस को अपडेट करता है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे अपना एड्रेस उसको प्रॉपर दे देता है और उन सबको क्लब कर देता है। तो ये लिंक करके 3 काम है। 3 फेसेस में काम करता है। पहले मेमोरी का लेआउट बनाता है, दूसरा सारे सिंबल्स सबको वो देखता है और सारी मेमोरी टेबल्स को अपडेट कर देता है, और थर्ड पास में वो रिलोकेट कर देता है इंफॉर्मेशन और अपडेट कर देता है एड्रेसेस को, कि किस किस को एड्रेस नहीं मिला वो सबको एड्रेस देके सबको क्लब कर देता है और फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। इसके बाद आता है डायनेमिक लिंकिंग। नाउ व्हाट इज डायनेमिक लिंकिंग? डायनेमिक लिंकिंग में क्या होता है, जनरली सारे प्रोग्राम स्टैटिकली लिंक्ड होते हैं। जनरली हम स्टैटिकल लिंक करते हैं। लेकिन सिंस 1980s मोस्ट सिस्टम हैव सपोर्टेड शेयर्ड लाइब्रेरी एंड डायनेमिक लिंकिंग, क्योंकि आफ्टर 1980s बहुत हम सब लोग शेयर्ड लाइब्रेरीज हमें चाहिए होती हैं। तो शेयर्ड लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोग्रामिंग को हम शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे डायनेमिक लिंकिंग की जरूरत पड़ती है। अब डायनेमिक लिंकिंग कैसे करते हैं जी? फॉर कॉमन लाइब्रेरी पैकेज, जैसे एक लाइब्रेरी पैकेज है, कॉमन है 4-5 प्रोग्राम में, और आप एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे हो जिसके 4-5 प्रोग्राम है, तो वो क्या करेगा, ये जो जैसे सपोज करो आप सी के 5-6 प्रोग्राम को क्लब करके आपने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है, सब में कोनियो डॉट एच या आई एस डी ओ डॉट एच आपकी यूज़ हो रही है, या मैथ डॉट एच यूज़ हो रही है, तो वो बार बार हर प्रोग्राम के लिए नहीं करेगा, वो एक के लिए स्टोर कर लेगा क्योंकि वो शेयरेबल है और बाकियों के साथ शेयर कर देगा। तो do not know where library is loaded until runtime must resolve references dynamically when program runs। हाँ, तो होगा क्या कि जब वो उसको रन करेंगे हम प्रोग्राम को, तो एट दैट टाइम वो रिजॉल्व करेगा कि कौन सा रेफरेंस आपको
मतलब वो जो फाइल है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होनी है, कहाँ कहाँ पे शेयर होनी है। तो ये काम जब होता है इसको कहते हैं डायनेमिक लिंकिंग। दोबारा सुनो, डायनेमिक लिंकिंग का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर आपकी शेयरेबल लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं, तो शेयरेबल लाइब्रेरीज को आपने क्लब तो कर दिया, मतलब शेयरेबल लाइब्रेरी को एक बार आपने स्टोर तो कर, लिंक तो कर दिया, लेकिन जब हम उसको रन करेंगे तो एट दैट टाइम उसको एक डायनेमिक लिंकिंग चाहिए होगी हर प्रोग्राम को, कि भाई मेरे को भी चाहिए ये, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। उसको कहते हैं डायनेमिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग तो सिंपल है, एक प्रोग्राम है उसके अंदर ही वो फाइल है, सारी फाइलें उसी के अंदर है, और उसमें कोई शेयरेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जहाँ पे शेयरेबल लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पे आपको एक ही लाइब्रेरी कई सारे प्रोग्राम्स को यूज़ करनी है, तो वो क्या होगा, लिंकिंग करते वक्त तो शेयरेबल लाइब्रेरी को एक बार लिंक कर देगा, स्टोर कर लेगा। लेकिन जब उसको रन करेंगे तो रन करते वक्त वो लाइब्रेरी जो है वो सबके साथ शेयर होगी, और वो इन्फॉर्मेशन डायनेमिक लिंकिंग कहलाती है। मतलब इस प्रोसेस को हम डायनेमिक लिंकिंग कहते हैं, क्योंकि क्योंकि उसको प्रोग्राम को नहीं पता है कि लोड करते वक्त वो वो जो शेयरेबल फाइल है वो किस किस प्रोग्राम को चाहिए। तो वो अपने आप प्रोग्राम जो है वहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमें ये शेयरेबल फाइल चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ लिंकिंग इज व्हाट वी कॉल डायनेमिक लिंकिंग। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और ये कैसे होती है ये भी समझो। वन वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डायनेमिक लिंकिंग इज जंप टेबल। जंप टेबल के थ्रू होती है। नाउ जंप टेबल क्या है? जंप टेबल के अंदर ना सब पता होता है कि उसके एक तरीके की टेबल होती है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि प्रोग्राम को कहाँ कहाँ पे सब रूटीन चलाना है, मतलब एक सब प्रोग्राम चलाना है, दूसरा प्रोग्राम चलाना है, फिर तीसरा चलाना है, और हर प्रोग्राम के लिए तुम्हें पता ही है कोई शेयरेबल फाइल होगी। तो एक टेबल मेंटेन होती है जिसको हम जंप टेबल कहते हैं। वो जंप टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है कि इस वाले सब रूटीन को कहाँ पे रन करना है, इस सब रूटीन को, इसे कहते हैं डायनेमिक रीलोकेशन। तो इस जंप टेबल को मेंटेन करके रखता है लिंकर। और जब हम उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस जंप टेबल से उसको पता लग जाता है कि अब यहाँ पे चलने के बाद इस प्रोग्राम को यहाँ पे जंप करना है, और यहाँ से फिर ये दूसरा प्रोग्राम चलेगा। तो वो शेयरेबल इंफॉर्मेशन जो है वो सारी जंप टेबल के अंदर स्टोर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जी डायनेमिक लिंकिंग का। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अभी हम डिस्कस करते हैं आप लोगों से। तो मोटा मोटा आप सबको समझ में आ गया कि लिंकर क्या होता है। लिंकर क्या करता है जी, जो कंपाइलर और असेंबलर आपका मशीन कोड जनरेट करता है उसके साथ कुछ और एडिशनल फाइल्स होती हैं, उसको क्लब करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। मैंने आपको आगे फर्दर क्या बताया कि लिंकिंग दो तरीके की होती है, स्टैटिक लिंकिंग और डायनेमिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग मैंने आपको बताया जिसके अंदर मतलब शेयरेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ एक ही साथ है, जब कहीं रन करना है उसको क्लिक करो और डबल क्लिक करो, रन हो जाएगा। एक मैंने बताया डायनेमिक लिंकिंग, जहाँ पे शेयरेबल लाइब्रेरीज हैं वो एक बार स्टोर होती हैं, और जब आपको उसको रन करना होता है तो वो लिंकर उसको लिंक करता है कि वो जब प्रोग्राम डिमांड करते हैं तो कि हमें ये लाइब्रेरी चाहिए, तो जंप टेबल के हिसाब से लिंकर उनको एलोकेट कर देता है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से डायनेमिक लिंकिंग यूज़ होती है शेयरेबल फाइल्स के अंदर, जहाँ पे हमें शेयरेबल करना है, मतलब लाइब्रेरीज को शेयर करना है या किसी भी चीज़ को जो शेयरेबल चीज़ है उसके प्रोसेस को क्योंकि वो रन टाइम पे ही होगा। क्योंकि देखो सपोज करो आपने एक फाइल क्लब कर दी जिसके अंदर 10 प्रोग्राम है, और 10 प्रोग्राम के साथ एक सिंगल लाइब्रेरी है जो 10 के 10 प्रोग्राम को चाहिए। तो आपने इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर दी, लेकिन जब आप उसको रन करोगे तो उस टाइम वो लिंकर डायनेमिक लिंकिंग बनाएगा। डायनेमिक लिंकिंग मतलब रन टाइम पे लिंकिंग बनाएगा। पहले तो शेयरेबल को उसने जब स्टोर किया तो सिंगल करा, लेकिन जब उसको एक्सपेंड करेगा, जब उसको रन करेगा, तो वो क्या करेगा, वो 10 के 10 प्रोग्राम को उस शेयरेबल फाइल को देगा ये फाइल। और उसको कैसे पता लगेगा लिंकर को, वो एक टेबल मेंटेन करके रखता है अपने पास जिसको जंप टेबल कहते हैं। तो जंप टेबल के थ्रू उसको ये पता लग जाएगा लिंकर को कि मेरे को इन लोगों को ये शेयरेबल फाइल देनी है, तो वो उन उन लोगों को, मतलब उन प्रोग्राम्स को अपना फाइल को शेयर कर देगा। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। नाउ अभी मैं एक चीज़ और रह गई है, लोडर। उसके बाद आपसे डिस्कशन करेंगे। नाउ लोडर इज़ व्हाट। लोडर ने क्या करना है जी, लिंकर ने जो प्रोग्राम बनाया, लोडर ने उस प्रोग्राम को लोड करना है मेन मेमोरी में। इसका मेन फंक्शन ये है। लोडर इज अ स्पेशल प्रोग्राम विच टेक्स द इनपुट फ्रॉम द लिंकर एंड लोड इनटू द मेन मेमोरी एंड प्रिपेयर दिस कोड फॉर एग्जीक्यूशन बाय कंप्यूटर, और देन कंप्यूटर जो है उसको एग्जीक्यूट करता है, उस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। तो लोडर का मेन काम क्या है, लोडर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू द प्रोग्राम एंड इवन इट सेटल्स डाउन सिंबॉलिक रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर होते थे ना उसके अंदर, जब हम
किसी को इन्फॉर्मेशन लेके जानी होती थी, प्रोग्राम लेके जाना था, तो उसके साथ ग्राफिक्स को नहीं लेके जाते थे वो लोग, क्योंकि ग्राफिक्स जो थे वो ज़्यादा मेमोरी लेते थे। आजकल ये प्रॉब्लम नहीं है, आजकल आपके पास स्पेस बहुत होता है सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर। तो लोडर बेसिकली क्या करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को लोड कर देता है मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। और वो मेन मेमोरी कौन सी है, वो ऑब्वियसली रैम और रोम की बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम रन होता है ये प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंगली होता है। तो ये मेन मेमोरी के अंदर आपका प्रोग्राम को लोड करता है। अब लोडर कई तरीके का होता है जी, 4 तरीके का लोडर होता है, ये चारों पढ़ने जरूरी हैं। एब्सोल्यूट लोडर, सिंपल लोडर। एब्सोल्यूट लोडर कैसे है, जैसे कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया प्रोग्राम, उसके बाद लिंकर ने उसको लिंक कर दिया सारी फाइलों को जो उसकी जनरेट होती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल और 2-3 फाइलें और होती हैं, उन सबको क्लब कर दिया। क्लब करने के बाद उसको लोडर को दे दिया, लोडर क्या करता है, उसको मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, उनको लेकोएट करता है। तो जो नॉर्मल लोडर होता है उसको हम एब्सोल्यूट लोडर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट लोडर, it's a scheme that in this scheme the loader simply accept the machine language code produced by the assembler and place it into the main memory. Means machine language code produced by the assembler, then it is linked, means the linker, the file that is generated by the linker, place it into the main memory and the location specified by the assembler. So ये काम करता है जी आपका एब्सोल्यूट लोडर। एंड दूसरा है रीलोकेटिंग लोडर। रीलोकेटिंग लोडर क्या करता है, कभी कभार आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, कभी कभार जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो, उसके अंदर सब रूटीन्स होते हैं। सब रूटीन्स मतलब उस प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, जो कि सब रूटीन्स में आपने अगर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसके अंदर पॉइंटर के अंदर हम अभी जब पढ़ोगे आप, तो पॉइंटर में हम क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उसको, उनको सब रूटीन्स कहते हैं, जो कि बार बार यूज़ होता है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को साइड में चलाते हैं, मतलब वो उसको मेन प्रोग्राम का पार्ट ना रख के उसको साइड में रखते हैं। और क्या होता है, जब कभी हमें उसको रन करना होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम जंप और कॉल, आपने पढ़ेंगे अभी आप सी में, तो उसके थ्रू हम सब रूटीन्स को कॉल करते हैं। तो रीलोकेटिंग लोडर वहाँ पे काम आता है जहाँ पे सब रूटीन प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि उसको बार बार सब रूटीन को के हिसाब से उसको एड्रेसेस को चेंज करना होता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीलोकेटिंग लोडर, क्योंकि एवरी टाइम वेन एवर द सब रूटीन कम, तो जो एड्रेसेस हैं वो चेंज होते हैं और उस एड्रेसेस को मेंटेन करता है रीलोकेटिंग लोडर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रीलोकेटिंग लोडर क्या होता है। इसके बाद आता है जी डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। डायरेक्ट लिंकिंग लोडर भी नाम से क्लियर है। इट इज़ डायरेक्ट लिंकिंग लोडर इज अ जनरली रीलोकेटेबल लोडर ही होता है ये भी, and perhaps more popular loading scan presently used. It has an advantage of allowing the program multiple procedure segments and multiple data segments. Means बहुत सारे सेगमेंट्स को एक साथ रन करने के लिए डायरेक्ट लिंकिंग मीन्स, इसके अंदर क्या होता है, इसमें लिंकिंग और लोडर जो है वो एक ही प्रोग्राम होता है, मतलब वो वही प्रोग्राम लिंकिंग भी कर रहा है और पैरेलली उसी को लोड भी कर रहा है। सो दैट इज़ वाई ये एक टाइप है लोडर की जिसको हम डायरेक्ट लिंकिंग लोडर कहते हैं। मतलब वो डायरेक्ट लिंकिंग भी करेगा और साथ साथ लोडिंग भी करेगा, मतलब डाटा को लिंक भी करेगा, मीन्स कंपाइलर से जो फाइलें जनरेट होंगी उसको क्लब भी करेगा और साइमल्टेनियसली उसको लोड भी करेगा, उसको मेमोरी के अंदर लोकेशन भी देता जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। एक लोडर और होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बूट स्ट्रैप लोडर। ये क्या होता है, बूटस्ट्रैप लोडर होता है जो कि आपके सिस्टम को बूट करने का काम आता है। बूट करने का काम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करते हो या अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो सबसे पहले बूट होता है, उसको बूट कहते हैं। मतलब बूट का मतलब वो एक स्पेशल प्रोग्राम रन होता है और वो स्पेशल प्रोग्राम बूट स्ट्रैप लोडर के अंदर स्टोर होता है, मतलब बूट स्ट्रैप लोडर की वजह से वो लोड होता है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम into the main memory, it is run when we start the computer, so it is done with the help of the bootstrap loader. So I hope चारों तरीके के लोडर्स आपको समझ में आ गए होंगे। although the knowledge for these loaders it is must आपको रखनी है, although it is not in your course I think, but still you should have to learn what are the different types of loaders, कितने तरीके के होते हैं और उनका काम क्या है। so absolute loader मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, it is a normal loader जो कि क्या करता है, एग्जीक्यूटिव फाइल जो बन के आती है उसको स्टोर करता है मेन मेमोरी के अंदर। रीलोकेटिंग लोडर हम तब कहते हैं लोडर को जब उसके अंदर सब रूटीन्स प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब सब रूटीन के अंदर क्योंकि बार बार लोकेशन चेंज होती है तो उसके अंदर रीलोकेटिंग लोडर्स, हमने उसका नाम रीलोकेटिंग लोडर कह दिया उसी प्रोग्राम का है, एक सिंपली प्रोग्राम है ये सारे। और डायरेक्ट लिंकिंग लोडर का मतलब क्या हुआ, ये लिंकिंग और लोडर जो है एक ही सिंगल प्रोग्राम के अंदर होता है, इसको डेट्स वाई इसका नाम डायरेक्ट लिंकिंग लोडर कह दिया जाता है। और लास्ट बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर मैंने बताया जो कि
बूटिंग प्रोग्राम को जो सिस्टम के लिए नीडेड होता है उसको रन करने के काम आता है बूटस्ट्रैप लोडर. सो other types of loader. Now अगर हम broadly देखें what is the difference between linker and loader, this is again a very important. The main function of the linker is to generate executable file. Everybody can understand this. And whereas the main objective of loader is to load the executable file into main memory. तो linker जो files generate करता है उसे loader वो store करता है. And the linker takes the input of the object code generated by the compiler or assembler. Yes, this is okay. And the loader takes the input executable file generated by the linker. तो loader जो है obviously linker के बाद काम करता है. Linking can be defined as a process of combining various pieces of the code and the source code to prevent executable code. लिंकिंग में क्या होता है, बड़ी सारी पीसीज ऑफ कोड्स को क्लब करके सोर्स कोड को क्लब करके एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनाया जाता है. और लोडर कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग एग्जीक्यूटेबल कोड्स टू द मेन मेमोरी फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन. लिंकर्स दो तरह के होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, लिंकेज एडिटर एंड डायनेमिक लिंकर. लिंकेज एडिटर को आप स्टैटिक लिंकर भी कह सकते हैं और डायनेमिक लिंकर आपको पता ही है क्या होता है. सो लोडर आर द 4 टाइप्स: एब्सोल्यूट, रीलोकेटिंग, डायरेक्ट लिंकिंग एंड बूटस्ट्रैप. ये भी मैंने आपको बता दिया. Another use of linker is to combine all the object modules, again repeated, and it helps in allocating the address. Obviously loader का काम ही यही है कि उसको address को relocate करना executable codes को. Linker is also responsible for arranging objects in the program address space, and loader is also responsible for adjusting references which are used within the program. So this is all about the linker and loaders. So let me discuss with you all one by one by putting the questions. You just first write the question. What is the purpose of first question? My first question. What is the purpose of linker? What is the purpose of linker? और what is the use of linker? इसके साथ दूसरा क्वेश्चन अटैच करिए. दूसरा क्वेश्चन है what are the different types of linkers? या आप इसको ऐसे लिखिए, what is the difference between static and dynamic linker? और सर शुरू से एक और बोल दोगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिंकर, उसके बाद. second question, what is the difference between static and dynamic linker? ओके सर. So okay Nayar, you please explain these two questions. सर मैं वो क्वेश्चन नोट कर रहा था. कोई बात नहीं. Okay, who is going to answer this? कौन इसका आंसर देना चाहेगा? सर मैं दूं. Okay, गौतम अग्रवाल प्लीज. सर लिंकर होता है सर कि सोर्स कोड, और सोर्स कोड को जैसे हम लिखते हैं तब वो कंपाइल होकर ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, उसके बीच में सर वो एडिशनल फाइल्स को ऐड कर देता है सर, उसको लिंकर कहेंगे. और सर 2 टाइप के लिंकर होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक लिंकर्स. स्टैटिक लिंकर्स तो सर वही है जो एडिशनल फाइल्स को ऐड कर रहा है. तब भी डायनेमिक लिंकर्स होते हैं जो शेयरेबल फाइल्स होती हैं, जो जंप टेबल में होती हैं, उनको लिंक करता है. और यही होता है सर बस. एक मिनट जाओ. Yes, anybody else? सर एक्चुअली Yeah, कार्तिक. स्टैटिक लिंकर में होता क्या है, वो जो कंपाइल्ड बाइनरी के अंदर डिपेंडेंसीज को ऐड कर देते हैं, और डायनामिक पे वो नहीं करते, बट जब रन होता है तो रैम के अंदर सीधा डाल देते हैं. वेरी गुड. तो कुछ एग्जांपल देके बताओ. फॉर एग्जांपल सर, लाइक आई मेड अ गेम जिसमें एक पर्टिकुलर ग्राफिक लाइब्रेरी यूज हो रहा है. इन केस ऑफ स्टैटिक लिंकर क्या होगा, वो जो गेम के बाइनरी के अंदर उस लाइब्रेरी को अंदर ही डाल देगा, सो एक दूसरे मतलब वो रैम के अंदर वो बाइनरी के साथ ही आ जाएगा. डायनामिक पे उसको अलग सा बेचा जाएगा. और जब वो रन टाइम पे वो उसको कॉल कर लेगा वहाँ पे. Yes. लिंक कर देगा. ओके, गुड आंसर. एनीबडी एल्स हु वांट टू एक्सप्लेन दिस? डायनेमिक एंड लिंकर क्या होता है प्लीज? और आई विल कॉल यू, आई विल आस्क यू. मैं पूछूं आरुषि? सर एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो. मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? ओके. क्या आपको क्या समझ में आया पहले आप बताओ, मैं आपको करेक्ट करता हूँ. चलो चारू. सर मुझे लिंकर्स का तो समझ में आ गया कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनाता है. ठीक है, बिल्कुल और ठीक है. ये कैसे भी बनाता समझ में है? आ कैसे बनाता है? सर वो जितनी भी फाइल्स होती हैं सारी क्लब करके, मतलब जितनी भी अच्छा. एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं उनको क्लब करके चारू इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल इसको बनाता ऐसे है. बोलो, इसको ऐसे बोलो कि लिंकर क्या करता है, जो कंपाइलर और असेंबलर
के बाद जो प्रोग्राम जब हम कंपाइल कर देते हैं या असेंबलर को हम असेंबल कर देते हैं प्रोग्राम, तो उसके साथ कुछ डिफरेंट डिपेंडेबल फाइल्स भी बनती हैं। तो लिंकर क्या करता है, उन सारी फाइल्स को क्लब करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। चलो रिपीट करो। ओके सर, जो कंपाइलर या फिर असेंबलर। असेंबलर फाइल्स क्रिएट करते हैं, उसके साथ कुछ डिपेंडेबल फाइल्स भी बनती हैं। सो एक मिनट। हाँ बोलो, बोलो, सही बोल रहे हो। तो ये क्या करता है लिंकर, उन सारे सो फाइल। लिंकर का वर्क ये होता है कि वो सारी फाइल्स को क्लब करके उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। वेरी गुड। तो ये तो हो गया लिंकर। अब आगे बताओ, दो तरीके के लिंकेज कौन सी होती है? स्टैटिक लिंकर्स होते हैं और डायनेमिक लिंकर्स होते हैं। स्टैटिक लिंकर्स में बेसिकली होता है कि जो हमें जिसमें कुछ भी शेयर नहीं करना फाइल को। नहीं और मतलब क्या, मतलब एक एडिशनल फाइल कोई शेयर नहीं करनी, मतलब जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कार्तिक नायर ने कि उसने कोई गेम बनाया तो उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स की कोई लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, तो स्टैटिक लिंकिंग करते वक्त ये क्या करेगा, ग्राफिक की फाइल भी उसी के अंदर ही डाल करके क्लब कर देगा। तो ऑब्वियसली स्टैटिक लिंकिंग जो है भाई, वो क्या करेगी, मेमोरी ज़्यादा लेगी, उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी वो थोड़ी भारी बनेगी, हैवी बनेगी। क्यों? क्योंकि उसने सारी लाइब्रेरी उसके अंदर डाल दी। लेकिन जब ये डायनेमिक लिंकिंग करेगा तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइब्रेरी नहीं डालेगा, लाइब्रेरी का कुछ ऐसा पार्ट डाल देगा जो कि जब रन करेगा तो वो लाइब्रेरी जो है वहाँ पे कॉल हो जाएगी। समझ में आया? तो डायनेमिक लिंकिंग करने से फ़ायदा क्या है कि तेरी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी वो साइज़ में छोटी बनेगी ऑब्वियसली। लेकिन डायनेमिक लिंकिंग अगर तुम्हें करनी नहीं आती है तो क्या होगा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डिपेंडेंसी मिलेगी नहीं। तो इसलिए पहले लोग क्या करते थे, स्टैटिक लिंकिंग यूज़ करते थे, लेकिन आज की डेट में डायनेमिक लिंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें नेट से या कहीं ना कहीं से रिसोर्स उसको मिल जाता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट चारू शर्मा? सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया दोनों बोलो में डिफरेंस क्या है। बोलो ना, बोलो, क्या नहीं समझ में आया? बोलो क्या नहीं समझ में आया? सर अभी मतलब जब आपने पहले बताया था कि अगर हम डायनेमिक लिंकिंग तब करते हैं जब हमें फाइल्स शेयर करनी होती है वहाँ नहीं, पे। फाइल शेयर नहीं करनी होती, मतलब कहने का मतलब जैसे कि सपोज करो कि एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 10 सब पार्ट है। सपोज 10 पार्ट है, और 10 के 10 पार्टों को एक लाइब्रेरी है जो 10 के 10 पार्टों को चाहिए। ठीक है? तो अगर मैं उस लाइब्रेरी को 10 के 10 पार्टों के साथ स्टोर करूँगा तो भाई ऑब्वियसली साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही लाइब्रेरी 10 को यूज़ करनी है। तो अगर मैं उनको लिंक करूँगा तो मेरे को 10 बार अगर उसको लिंक करूँगा तो ऑब्वियसली साइज़ बढ़ जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्टैटिक लिंकिंग, कि 10 बार उसको स्टोर करो। लेकिन इसके इसके अपोजिट हम क्या करते हैं, हम उसको शेयरेबल फाइल को एक ही बार स्टोर करते हैं, और जब उसको रन करते हैं ना, रन करते टाइम लिंकर क्या करेगा, उसको लिंक कर देगा सभी 10 प्रोग्राम से जहाँ जहाँ उसको यूज़ होना है। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक लिंकिंग। अभी भी समझ में नहीं आया? सर अब आ गया। एक बार रिपीट कर। स्टैटिक लिंकिंग में हम क्या करते हैं कि अगर कोई हमें 10 प्रोग्राम्स हैं, हमें उसमें कोई लाइब्रेरी डालनी है। सो हम उस नहीं, वो कोई लाइब्रेरी को नहीं नहीं नहीं, 10 प्रोग्राम है और 10 प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट 10 लाइब्रेरी, एक ही लाइब्रेरी है वो 10 बार यूज़ हो रही है। ये तो सर कि वो तो एक ही लाइब्रेरी 10 प्रोग्राम्स में यूज हो रही है, तो हम्म, उसका साइज ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर तू इसके लिए हम डायनेमिक लिंकिंग करते हैं। अगर तू उसको 10 बार उसको लिंक कर देगी तो उसके लिए हम क्या ये करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक लिंकिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें साइज कम हो जाता है क्योंकि हम पूरी लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हैं, हम बस उस लाइब्रेरी का एक पार्ट यूज कर रहे हैं। मतलब वो नहीं उसको ऐसे भी बोल सकती है उसका पार्ट यूज़ कर रहे हैं, या ऐसे बोल सकती है कि उस लाइब्रेरी को एक बार स्टोर कर रहे हैं, 10 बार स्टोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एक्सपेंड करेंगे प्रोग्राम को, जब रन करेंगे तो वो 10 को लिंक कर देगा, मतलब 10 के 10 प्रोग्राम को चाहिए तो सही ना वो। तो वो क्या करेगा, रन टाइम पे उसको लिंक कर देगा। इसको कहते हैं डायनेमिक लिंकिंग, जो रन टाइम पे लिंकिंग होती है। ओके सर। I appreciate the way you ask the question. I appreciate this. Until and unless you can fully satisfied, you have to ask the question. And I appreciate कि चारू ने क्वेश्चन पूछा, उसको नहीं समझ में आया। चारू, आई थिंक अब तो सबको समझ में आ गया होगा। एक बारी हर्षिता यस बताए, सर। एक बारी हर्षिता बताएगी। यस हर्षिता, लिंकर क्या होता है, और हाँ लिंकर क्या होता है और कितने टाइप की लिंकिंग होती है प्लीज? सर लिंकर जो असेंबलर या फिर कोई भी कंपाइलर। इंटरप्रेटर वगैरह से जो कंपाइल फाइल्स वगैरह आती हैं, उनमें जो मॉड्यूल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स या फिर लाइब्रेरीज होती है, उन्हें लोड करता है। उनको क्लब करता है। हाँ, और उन्हें एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना देता है, जो बाद में जाके लोडर मेन मेमोरी में लोड करता है। वेरी गुड, चलो जी, ये तो हो गया एक पार्ट। अब ये बता, डायनेमिक लिंकिंग क्या होती है, स्टैटिक लिंकिंग क्या होती है?
सर जैसे कि 20 प्रोग्राम है आपने भी बताया, तो उसमें हमें एक लाइब्रेरी डालनी है। एक तो लाइब्रेरी है जो 20 के 20 प्रोग्रामों को चाहिए। हाँ, तो फिर डायनेमिक लिंकिंग में जब रन टाइम होगा तब जाके लिंक होगा वो, इससे नहीं स्पेस बच जाती है। बेटा पूरे अच्छे से समझाओ ना कि अगर हम उनको स्टैटिक लिंकिंग क्या होती है, पहले ये बताओ। सर स्टैटिक लिंकिंग में अगर मुझे स्टैटिक लिंकिंग करनी होती तो मैं क्या करता, ये 20 की 20 जो शेयरेबल फाइल है जो कि सबके साथ चाहिए, मैं 20 बार उसको स्टोर करूं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि उसको एक बार स्टोर कर लूं और साथ में ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर लूं कि ये 20 के 20 को चाहिए, तो जैसे ही मेरे को रन करना होगा उस टाइम वो 20 के 20 को दे दूंगा। नहीं समझ में आई अभी बात? हाँ जी सर, सर वो तो डायनेमिक हुआ ना रन टाइम हाँ के टाइम पे। हाँ, रन टाइम। अब तो मुझे पूरा समझा स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। सर दोबारा। डायनेमिक तो वो होगा ना कि जैसे कि हमने एक ही अरे जगह पे भाई स्टोर करना है। हर्षिता, मेरे क्वेश्चन को समझ। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, स्टैटिक लिंकिंग क्या है और डायनेमिक लिंकिंग क्या है, क्लियर कट समझाओ। और कौन बताएगा, रेज योर हैंड प्लीज। सर यस कार्तिक। सर एक्चुअली मैं थोड़ा एनालॉजी यूज कर सकता हूँ। हाँ प्लीज। सर समझिए, हमें आलू की सब्जी बनानी है। ठीक है। किचन हमारा बाइनरी है, हम्म, उसमें जो तवा है वो हमारा जहाँ पे वो रैम वगैरह, उसको रैम वगैरह मान लो, ठीक है। ठीक है। और किचन से, मार्केट से किचन तक का रास्ता हो गया कंपाइलिंग, ठीक है। ठीक है। सो स्टैटिक लिंकिंग में होता क्या है कि हम सारे सब्जी लेके किचन तक लेके आते हैं ठीक है। और वो बाइनरी पे रख देते हैं और तवा पे रखते हैं, और तवा पे रखने के बाद, रखने से पहले उस वक्त पे हम उस लाइब्रेरी, मतलब सारे सब्जी में से आलू की सब्जी के लिए जो सब्जी चाहिए उसे उठाते हैं। ठीक है। डायनामिक में क्या हो गया, हम खाली वही सब्जी लेके आएंगे जो आलू आलू की सब्जी बनाने के लिए जरूरत है, सब लेके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको और एलाबोरेट करो, तुमने और कंफ्यूज कर दिया लोगों को। एनालॉजी के बगैर शो करो नहीं, बगैर तो मैंने बोल दिया था ना। एक बार फिर, एक बार फिर। सर आई थिंक गलत बोला है। हाँ अभिषेक तुम बताओ फिर, चलो ठीक बताओ तुम। सर जो जैसे कार्तिक ने बोला कि हम सिर्फ वही सब्जी लेके आएंगे जो हमें चाहिए होगी, बट ऐसे नहीं है, हम उसको शेयर करेंगे ना, हम्म क्योंकि तो तुम, उसमें तो नहीं सिर्फ। नहीं, अरे तुम सब्जियों को छोड़ो, तुम ये बताओ हो है ओके क्या, ओके। एनालॉजी को छोड़ो, एग्जैक्ट बताओ क्या होता है डायनेमिक स्टैटिक लिंकिंग को। बतानी पहले। हाँ पहले स्टैटिक फिर डायनेमिक, सर यस। स्टैटिक होती है जैसे कि हमें कोई भी, जैसे कि आई थिंक, वेट वेट वेट, कोई भी प्रोग्राम है। अरे माइक तो ऑन कर भाई। हेलो। हाँ। सर जैसे कि कोई भी, जैसे कि हमारे पास 20 प्रोग्राम है, हम्म हमने 20 प्रोग्राम रन करने हैं, तो हम्म हम उसमें ना लाइब्रेरी से अटैच करते हैं, तो हमें 20 बार उसको हम्म उससे शेयर करनी पड़ेगी। 20 बट बार। उससे हम ऐसा शेयर करनी पड़ेगी 20 प्रोग्राम में। हम्म बट हम ऐसा करेंगे तो उसका जो फाइल का लोड होगा बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगा। हम्म तो इससे क्या होगा, हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी आगे जाके। हम्म बट इसको हम रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं डायनेमिक लिंकिंग, जिसमें हम्म हम उस शेयर जो जो हमारी शेयरिंग होती है, शेयर लाइब्रेरी होती है, उसको हम सिर्फ एक के साथ शेयर करते हैं और उसको हम लिंक कर देते हैं बाकी 20 के साथ, जिससे वेरी कि गुड। वो उसका साइज भी इंक्रीज नहीं होता और हमें और इजीली जब हमारा रन हो जाता है बस। और जब हम रन करेंगे उस टाइम क्या होगा, वो 10 के 10 के साथ लिंक हो शेयर हो जाएगी। जाएगा, लिंक हो हाँ जाएगी। लिंक हो वेरी गुड। जाएगी, लिंक हो ओके, जाएगी। आरुषि ने सेल्फ रेज किया हैंड, आई थिंक आरुषि को मौका देते हैं। यस आरुषि। सर स्टैटिक में दैट डजंट बिलीव्स इन शेयरिंग, वो बहुत ग्रीडी होता है। सो उसको हम्म अपनी हर एक प्रोग्राम को अपनी खुद की लाइब्रेरी चाहिए होती है। हम्म, बट डायनामिक शेयर करता है तो एक ही लाइब्रेरी वो अलग अलग प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो ठीक है आई थिंक। अभी भी देखो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज इट इज ओके। ओके, अब आते हैं लोडर्स पे। तो हाँ जी, सर स्टैटिक यूज कब होता है? स्टैटिक यूज पहले करते थे। एक्चुअली सपोज कर कि तेरे को जो तेरी डिपेंडेंसी है किसी प्रोग्राम में, जैसे कि गेम की बात करते हैं, कोई गेम जल्दी समझ में आएगी। लेट अस सपोज करो कार्तिक ने कोई गेम बनाई है, उसके साथ कोई ग्राफिक्स जो है वो डिपेंडेबल है कि ये ग्राफिक्स जरूरी चाहिए यही। तो भाई अब जब तुम उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे हो उसके साथ, तो वही ग्राफिक्स को तुम उसको अंदर डालोगे। ये तो हो गया स्टैटिक लिंकिंग, ठीक है। लेकिन अगर वो जो ग्राफिक्स है वो वेरी कर सकता है, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये क्या करेगा, या उस ग्राफिक्स जो है वो वेब पे अवेलेबल है, कहीं पे अवेलेबल है, तो जब ये वो लिंकिंग करेगा तो ये डायनेमिक लिंकिंग कर देगा कि उसका पाथ दे देगा कि ये ग्राफिक्स यहाँ से उठा ले।
तो जैसे ही वो एक्सपेंड करेंगे, जैसे ही हम उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो वो क्या करेगा उस टाइम डायनेमिक लिंकिंग कर देगा। मतलब उस टाइम वो वहाँ से उसको वहाँ से फैच कर लेगा। इसीलिए मैंने बताया कि डायनेमिक लिंकिंग इतना आसान नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है डायनेमिक लिंकिंग लोग कर देते हैं, लेकिन वो कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। लेकिन स्टैटिक लिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब चीज़ें तूने एक ही जगह डाल दी है, सब चीज़ें एक चीज़ में डाल दी हैं। तो जब तूने उसे रन करना है तो वो पूरा का पूरा टाइम भी लेगी रन करने में, वो टाइम भी लेगी ऑब्वियसली, और उसको एग्जीक्यूटेबल साइज का साइज भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर तू उसको डायनेमिक लिंकिंग कर देगा कि कुछ तो तूने चीज़ें डाल दी, बाकी सबके लिंक दे दिए, तो वो लिंक से जब वो चीज़ें डाउनलोड होंगी या उसको वहाँ से फेच करेगा, तो वो लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। तो डायनेमिक लिंकिंग ये होती है। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? कौन पूछ यस रहा सर। था? कौन पूछ रहा था ये? सर करण। करण, समझ में आया बेटा? बिल्कुल क्लियर? यस सर। ओके राइट। सो अब बात आती है लोडर्स की। हाँ जी कार्तिक साहब, दोबारा तुम्हारे से शुरू करते हैं। व्हाट आर द लोडर्स? नहीं सर, पहले आपको समझाना पड़ेगा सर, मेरे को नहीं पता। ओके, लोडर्स कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। लोडर्स कौन बताएगा? आयुषी? सर मैं बताने की एक बार देखूं? ओके चलो ट्राई सर करो। एक मिनट पहले आयुषी को। आयुषी यस। सर लोडर्स जो हम लिंकर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, लोडर्स उसे मेन मेमोरी में लोड करता है। वेरी गुड जी, बिल्कुल सही जवाब इसने दिया है। जो कि लिंकर के थ्रू एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, लोडर उसको लोड करता है। वेरी गुड। अब लोडर कितने तरीके के होते हैं ये समझा दे और आरुषि। सर 4 टाइप के लोडर्स होते हैं। सर मुझे फर्स्ट वाला समझ आ गया, बाकी और चलो पहला बताओ, पहला बताओ, एब्सोल्यूट लोडर सर बताओ। एब्सोल्यूट लोडर जो होता है वो सिंपली जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसे लोड कर देता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और रीलोकेटिंग लोडर क्या करता है? कुछ प्रोग्राम्स हमारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर सब रूटीन प्रोग्राम यूज होता है। अब सब रूटीन क्या होता है वो तुम अभी पढ़ोगे सी के अंदर। सब रूटीन क्या होता है कि मेन प्रोग्राम से हट करके कुछ प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, मतलब उसको बीच बीच में कॉल करते हैं। तो जहाँ पे तुम्हें बीच बीच में सब रूटीन प्रोग्राम को कॉल करना है, तो वहाँ पे तुम्हें बार बार उस प्रोग्राम के एड्रेसेस को चेंज करना है, क्योंकि सब रूटीन का एड्रेस तभी, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो सब रूटीन का एड्रेस वहाँ से कॉल होता है और फिर वो सब रूटीन प्रोग्राम चलता है। तो ऐसी जगह पे तुम्हें रीलोकेटिंग लोडर का यूज़ करना होता है। जो लोडर यहाँ पे यूज़ होता है उसे रीलोकेटिंग कहते हैं। समझ में आया आयुषी? यस सर। ओके। और एक डायरेक्ट लिंकिंग लोडर क्या होता है? डायरेक्ट लिंकिंग लोडर मैंने बताया कि लिंकिंग और लोडर वो एक ही मेन प्रोग्राम होता है, साथ साथ ही लिंकिंग हो रही होती है और साथ साथ ही लोड हो रहा होता है। वो दोनों काम साथ साथ करता है, मतलब लिंकिंग एंड लोडिंग दोनों काम साथ साथ करता है। इज इट ओके? यस सर। और बूटस्ट्रैप मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप लोडर वो होता है जिसको बूटिंग के काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसके अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं तो ये बूटिंग लोडर वहाँ पे यूज़ होता है। उस टाइम जो लोडर का प्रोग्राम होता है उसका नाम होता है बूटस्ट्रैप लोडर। इज इट ओके? मतलब नाम डिफरेंट है क्योंकि उनके काम की वजह से, लेकिन काम सबका लोडिंग का ही है। एब्सोल्यूट लोडर ने सिंपल लोडिंग करनी है। रीलोकेटिंग लोडर तब हम बोलते हैं जब वो उसके अंदर सब रूटीन प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर बार बार रीलोकेट करनी होती है मेमोरी। डायरेक्ट लिंकिंग लोडर वो लोडर होते हैं जिसके अंदर लिंकिंग और लोडिंग साइमल्टेनियसली करता है। और बूटस्ट्रैप लोडर तब कहते हैं जब वो हम उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो फर्स्ट टाइम बूटिंग के लिए काम आता है उसको हम बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। इज इट ओके? आरुषि समझ में आया? ओके चारू। ओके पहले चारू बताएगी। यस चारू, क्वेश्चन लिखो पहले। यस सर। पहले क्वेश्चन लिखो। व्हाट आर लोडर्स? व्हाट आर लोडर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडर्स? अब चारू शर्मा इसका आंसर देगी पहले। चारू। यस सर, किस चीज का आंसर? अरे ये क्वेश्चन जो लिखे हैं। अच्छा, व्हाट आर लोडर्स? सो बेसिकली लोडर्स जो फाइल लिंकर्स क्रिएट करते हैं उसको मेमोरी लोकेशन में एलोकेट करता है लोडर्स। राइट, लोड करता है। राइट, अब कितने Yes, तरीके sir. के लोडर्स होते हैं? सब 4 टाइप्स के होते हैं। डिफाइन करो। एक एब्सोल्यूट लोडर होते हैं। एब्सोल्यूट लोडर बेसिकली करते हैं कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जो नॉर्मल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसको मेमोरी में एलोकेट करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और दूसरा? फिर होते हैं रीलोकेटिंग लोडर्स।
ये वाला नहीं समझ में आया। ये सब रूटीन प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, तुमने अभी एक्चुअली पढ़ा नहीं है। सब रूटीन प्रोग्राम्स पढ़ोगे ना, उसके अंदर यूज होता है, जिसके अंदर डायनेमिकली एड्रेसेस बार बार चेंज होता है, तो वहाँ पे हमें ये रीलोकेटिंग लोडर का यूज करना होता है। समझ में आया सर? यस सर जैसे आपने बोला सब रूटीन प्रोग्राम बोल रहे हो सर, ये वही प्रोग्राम है जिसमें जैसे कि हम कभी सब चला रहे हैं, कभी ऐड चला रहे हैं, कभी नहीं डिवाइड चला रहे हैं, नहीं तो उसको बार बार रिकॉल ना कराने के लिए हम एक बार उसे फंक्शन को लिखते हैं और बार बार करा लेते हाँ हैं, बस वो बस वाला बोल उसका रहे हो आप? हाँ हाँ उसी वही, हाँ हाँ, मैंने समझ गया वही। हाँ ओके सर, ओके। उसी को कहते हैं सब रूटीन हाँ प्रोग्राम्स को सर, बार बार हाँ कॉल। ओके सर, राइट। ओके, हाँ। तो उसके अंदर जो लोडर्स यूज होते हैं, उस टाइम जो लोडर का प्रोग्राम यूज होता है उसे हम रीलोकेटिंग लोडर कहते हैं। यस ठीक सर, है। आई गेट इट। और थर्ड वन इज डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। ये क्या होता है? सर डायरेक्ट लिंकिंग लोडर में वही चीज लिंकर का भी काम करते हैं और वही लोडर्स का भी काम करते हैं। हाँ मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। राइट। Yes, लास्ट वो एक ही होता है। लास्ट नेक्स्ट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप नहीं समझ में आया। अरे बूटस्ट्रैप जैसे तेरा मोबाइल है, बंद करके ऑन करती है तो वो थोड़ा सा एक पहले प्रोग्राम रन होता है ना, जिसके बाद वो सिस्टम तेरा कंप्यूटर ऑन होता है या मोबाइल ऑन होता है, तो वो बूटिंग उसे कहते हैं बायोस प्रोग्राम। तो वो बायोस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो लोडर यूज होता है उसे बूटस्ट्रैप कहते हैं। नहीं समझ में आया? से आ गया। हाँ जैसे देखिए, देख पढ़ के देख यहाँ पे, ये पढ़ पढ़ के सुना मुझे। बूटस्ट्रैप लोडर क्या लिखा हुआ है? When a computer is first turned on or restarted, a special type of absolute loader is executed called bootstrap loaders. It loads the operation system into the main memory and executed the related programs. It is added to the beginning of all objects program that are to be loaded into an empty idle system. समझ में आया? जो खाली सिस्टम के अंदर Yes. सबसे पहला प्रोग्राम रन होता है उसे, उसको कौन करता है? बूटस्ट्रैप लोडर। अब समझ में आया तेरे को? Yes, yes. ओके सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग ओवर हियर। और एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंस